recombinant insulin. I've told you, recombinant insulin is called as humulin. And previous to the production of recombinant insulin through the biotechnology, I've told in the previous class, we use the insulin to be extracted from the pancreas of other related animals. Slaughtered cow and slaughtered pig. उनके pancreas से हम लोग insulin extract करके use करते थे for human being. And as because the insulin we are getting from some other organisms, so it is creating the immunological response, the allergic response in the body. And that is why the recombinant insulin or humulin is more, that is what, that is what advanced, or we can say it is more effective with respect to the other insulin or insulin extracted from the other animals. इसलिए मैंने previous class में लिखाया था कि why the recombinant drugs or therapeutics are more effective. ना एक तो ये large scale production होता है, number two unnecessary जो immunological response है उसको वो फॉर्म नहीं करता है, उसको रिड्यूस करता है, एंड इफेक्टिव भी ज्यादा है. ठीक है, साइड इफेक्ट भी कम होता है. सो नॉर्मली वी नो दैट इंसुलिन that is extracted from beta cell of isolates of Langerhans. And insulin gene is present in, हमेशा याद रखिए, क्रोमोसोम नंबर 11. क्रोमोसोम नंबर 11 में इंसुलिन जीन प्रेजेंट है. तो क्रोमोसोम नंबर 11 इंसुलिन जीन इज प्रेजेंट. क्योंकि इंसुलिन जीन होगा तभी तो इंसुलिन प्रोटीन बनेगा, राइट. एंड अगर हम लोग इंसुलिन को देखें नॉर्मली, वी हैव व्हाट, वी हैव लाइक दिस. ये एक्चुअली एक प्रो इंसुलिन, दिस इज एक्चुअली प्रो इंसुलिन. प्रो इंसुलिन which is made up of A peptide, B peptide, C peptide. So proinsulin is formed of A peptide, B peptide, and C peptide. A peptide, B peptide, C peptide. A peptide is made up of what? 21 amino acid. B peptide is made up of 30 amino acid. And C peptide is made up of 31 amino acids. इसीलिए प्रो इंसुलिन टोटल कितना अमीनो एसिड से बनता है ना, दैट इज 82 अमीनो एसिड. कौन सा? प्रो इंसुलिन. एंड दीज आर बीइंग इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बाय मींस ऑफ व्हाट ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट हियर. ठीक है, सी पेप्टाइड को हम लोग क्या बोलते हैं ना, कनेक्टिंग पेप्टाइड. Now during
एंड हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स में the hormone which is synthesized in the body almost maximum in the pro मतलब inactive form, they will be activated when the requirement of the body will be occurred. So proinsulin will be changed into what? Active insulin. So proinsulin will be changed into what? Active insulin by means of removal of what? C peptide. तो ये सी पेप्टाइड यहां से हट गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे? एक्टिव इंसुलिन को क्या बोलेंगे? इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड्स? हाउ मेनी अमीनो एसिड? 51. बी पेप्टाइड ए पेप्टाइड दोनों होगा. इंसुलिन इज फाउंड ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड? 51 अमीनो एसिड. This is A, this is B, this is C. Removal of C peptide from the proinsulin gives rise to the formation of active insulin. तो active insulin में कौन सा पेप्टाइड प्रेजेंट हो गया? A and B पेप्टाइड. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ये है नॉर्मल प्रोसेस. जो क्वेश्चंस में आता है, जो एनसीईआरटी का लाइन है, द मेन चैलेंज, the main challenge for production of insulin in our DNA technology was insulin assembled into matured form. यहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रहता है. This statement is very very important. What is the main challenge the face during the formation of humulin or recombinant insulin? Na assembled of the insulin to form the matured form. जब तक ये matured form में convert नहीं होगा, तब तक इसका कोई utilization नहीं होगा body में. So it is the main challenge. And इसी वजह से in 1983 the scientist of Eli Lilly, याद है? The scientist of Eli Lilly company formed two synthetic gene of A and B gene. क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए? We need only actually one A peptide and B peptide because the matured insulin is formed of A peptide and B peptide. So we need A, B and C gene or only A gene and B gene. Because we have, this is the insulin gene which is made up of A gene, B gene and C gene. And ये तीनों जीन से बनता है इंसुलिन जीन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम नंबर 11. अगर हम लोग नेचुरल तरीके से इस जीन को यूज करते हैं तो उसमें तीनों जीन प्रेजेंट होता, तो आपका मैच्योर्ड इंसुलिन फॉर्म नहीं होता, प्रो इंसुलिन होता. So that is the main challenge which is faced during the rDNA to convert it into matured form. And that is the reason why in 1983 the Eli Lilly company scientist has manufactured or produced the two synthetic gene. It is not the natural. हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बोला था कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जितने भी इंसुलिन जितने भी जीन यूज होता है, all are synthetic genes. So we are using also here the two synthetic gene against the A peptide, sorry, A gene and B gene. And now
we made to introduce A and B gene along with LAC-Z gene into PVR 322 separately. To produce A peptide and B peptide separately and assembled into matured insulin using disulfide bond. बहुत ही इजी प्रोसेस है। वो क्या किए देखिए, पहले ए जीन अलग से लिए, बी जीन अलग से लिए, ए जीन को लैक-जेड जीन के साथ ऐड किए, बी जीन को भी लैक-जेड जीन के साथ ऐड किए। दिस इज ए जीन, दिस इज बी जीन। एंड अभी लैक-जेड जीन के साथ आप ऐड करने का क्या मतलब था, ताकि हम लोग पढ़े हैं, देखिए याद करिए, सिंगल स्टेप प्रोसेस से हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, एंड दैट विल बी कलर सिलेक्शन मेथड, ब्लू व्हाइट कलर सिलेक्शन, एंड दैट इज द मेन कॉज बिहाइंड the A gene and LAC-Z gene has been assembled and that now enter into what? Na PVR 322. क्योंकि प्री PVR 322 में LAC-Z gene नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली अलग से LAC-Z gene के साथ A को ऐड करके PVR 322 में इंसर्ट किया गया, ताकि यहाँ पे 2 सिलेक्शन मेथड ना हो, 1 सिलेक्शन मेथड हो। एंड PVR 322 थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्लोनिंग साइट था, हम लोग पढ़े 4 क्लोनिंग साइट होता है PVR 322 में, इसलिए वो PVR 322 को यूज किए। सो इंट्रोड्यूस्ड इनटू PVR 322 इंडिपेंडेंटली, सॉरी सेपरेटली कि एट ए टाइम, क्या किए थे, ये है क्वेश्चन। सेपरेट किए थे, अलग से A चेन, अलग से B चेन। So they will get the what? Not A peptide and they will get also B peptide. अब ये A peptide and B peptide को डाइसल्फाइड से जोड़ के मैच्योर्ड इंसुलिन बना सकते हैं। याद रहेगा। तो सी पेप्टाइड का यहाँ पे रोल क्या है, तो सी पेप्टाइड हम लोग पढ़ रहे थे, कनेक्टिंग पेप्टाइड व्हिच इज कनेक्टिंग द ए विथ बी। अब सी पेप्टाइड का भी एक्चुअली मेडिकल साइंस में इसका भी रोल है, एंड व्हाट इज दैट रोल, ना सी पेप्टाइड if it is present in urine then कंफर्म करता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यूरिन में सी पेप्टाइड प्रेजेंट है तो कंफर्म करता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन फॉर्म तो हो रहा है लेकिन फंक्शन नहीं करता है। मींस टाइप 2 डायबिटीज, diabetes 1 and 2 both are the type of diabetes in which the insulin is not properly functioning or either not secreting। अगर secrete हो रहा है, function नहीं कर रहा है टाइप 2, अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो सी पेप्टाइड होगा, अरे है कि नहीं, अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो सी पेप्टाइड एब्सेंट हो। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सी पेप्टाइड आल्सो हैज द मेडिकल रोल
diagnostic role in the diagnosis of type 1 and type 2. समझे कि नहीं? So type 2 मतलब NIDDM याद आया? अगर absent है then it will be confirmed that no insulin. आपके बॉडी में इंसुलिन सिंथेसिस नहीं हो रहा है. अगर इंसुलिन सिंथेसिस नहीं हो रहा है then it will be IDDM means we need the insulin for the treatment. IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. अगर आपको बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन फिर भी डायबिटीज है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि इंसुलिन इज नॉट प्रॉपर्ली फंक्शनिंग. हाउ? न प्रेजेंस ऑफ सी पेप्टाइड. तो सी पेप्टाइड का कंफर्मेशन भी आपको टाइप 1 टाइप 2 दिखाता है. ठीक है, we are coming to just like the insulin which is synthesized, we can also synthesize human growth hormone. पढ़े हैं ना? HGH. HGH को हम लोग बोविन सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं. Bovine somatotropin means this is actually recombinant human growth hormone. Just like already मैं बार बार बोला हूँ कि by means of recombinant DNA technology we are able to produce the synthetic protein. We are able to produce the recombinant protein, and all those hormones can be synthesized through the biotech which are proteinous hormone. तो GH भी एक प्रोटीनियस हार्मोन है, तो इस GH के थ्रू भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. सो बोविन सोमैटोट्रोपिन और HGH और रिकॉम्बिनेंट GH यूज्ड फॉर हाइपोपिट्यूटरिज्म. होगा कि नहीं? हाइपोपिट्यूटरिज्म मतलब जिसके केसेस में पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीशन कम होता है, उनके केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट. सो यूज फॉर हाइपोपिट्यूटरिज्म ट्रीटमेंट. यूज फॉर व्हाट? ना दैट इज मतलब ये हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब क्या है ना? ड्वार्फिज्म. It is for the treatment of dwarfism. It is for the treatment of healing of injury. देखिए इंजरी होगा तो हीला प्रोसेस और हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको जीएच चाहिए. अरे जीएच क्या है? ग्रोथ हार्मोन. अगर आप जीएच यूज करेंगे तो आपका जो इंजरी है वो फास्टर हील अप होगा. तो फास्टर हीलिंग के लिए हम लोग जीएच यूज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो फॉर दी commercial production of milk, जो कि यूएसए में यूज किया जाता है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन केस ऑफ काउ. कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब हाई क्वांटिटी. एंड उसी जीएच को यूएसए में नाम दिया गया है बोविन सोमैटोट्रोपिन. तो बोविन सोमैटोट्रोपिन इज एक्चुअली a recombinant GH which is being used for the commercial production of milk in cow. समझ में आ गया? So this is all about the insulin and GH. Now we are coming to the next, that is gene therapy. Complete है क्या? So we are coming to the gene therapy. Therapy means treatment. So here we are treating the particular disease by means of gene. By
introduction of corrected copy of DNA in place of डिफेक्टिव जीन। अगर आपकी बॉडी में डिफेक्टिव जीन है तो डिफेक्टिव प्रोटीन फॉर्म होगा। डिफेक्टिव प्रोटीन फॉर्म होगा तो डिफेक्टिव टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म विल ऑकर, और इफ द जीन विल बी कंप्लीटली एब्सेंट, सपोज टू बी मान लेते हैं जीन एब्सेंट है टोटल, तो अगर एक फंक्शनल जीन एब्सेंट है तो फंक्शनल प्रोटीन भी एब्सेंट होगा और फंक्शनल एंजाइम भी एब्सेंट होगा, because enzymes are made up of protein and proteins formed from the particular gene. अगर जीन एब्सेंट है तो एंजाइम भी एब्सेंट होगा, अगर एंजाइम एब्सेंट हुआ तो मेटाबॉलिज्म भी आपका जो होना चाहिए नॉर्मल वो नहीं होगा। In that case we can treat that particular patient by means of gene therapy. So introduction of that corrected gene, जो जीन फंक्शनल जीन है, जो करेक्टेड जीन है, हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू द बॉडी so that the patient can be treated. So here it is the called as gene therapy or treatment by the gene. अभी पहले के जमाने में जीन थेरेपी यूज हम लोग करते थे फॉर द ओनली जेनेटिक डिजीज। Nowadays gene therapy is a widespread treatment for many different type of disease. Although it is very expensive, that is the reason why it is not so popular till now. ठीक है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। ये हमेशा हम बोलते हैं कि ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट ना सिम्टम। सिम्टम कैसा है उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। तो देखते हैं क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम्स है। राइट द पॉइंट, स्टेटमेंट लिखिए। The method to cure an inherited disease, लिखिए method to cure an inherited disease by providing the patient with a corrected copy, by providing the patient with corrected copy of the defective gene. Full stop. But now been extended to include attempt to cure any disease by introduction of cloned gene into the patient. So we will discuss the gene therapy while taking an example. SCID. We will discuss the gene therapy by taking an example of SCID. Severe combined immunodeficiency. देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसी, जस्ट लाइक एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो मतलब एड्स भी एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, स्किड भी एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है। बट एड्स क्या था ना, एक्वायर्ड था, स्किड क्या है ना, इनबर्न है, मतलब ये जेनेटिक डिफेक्ट है। ठीक है, एड्स में क्या था ना, एक्वायर्ड immunodeficiency, a collection of symptom called as syndrome.
लेकिन स्कीड में क्या होता है, कम सीवियर कंबाइंड मींस यहाँ पे बोथ ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोथ विल बी अफेक्टेड। आप लोग पढ़े कि इम्यूनिटी इज फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू टू डिफरेंट टाइप, सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल मेडिएटेड, बी सेल टी सेल्स, यही दोनों टोटल इम्यूनिटी फॉर्म करते हैं। एंड सीवियर कंबाइंड का मतलब क्या है ना, बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड विल बी एब्सेंट। एंड मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्पर टी सेल आता था, एंड हेल्पर टी सेल का फंक्शन क्या है ना, टू एक्टिवेट द एक्टिविटी ऑफ सेल, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल फॉर द इंक्रीजिंग किलिंग एबिलिटी, and also they help the B cell for the production of antibody, and B cell antibody बनाएगा तभी जाके बनेगा आपका humoral mediated immunity, and T cell cytotoxic T cell killing ability increase करेगा तो cell mediated immunity form होगा। so मतलब है कि helper T cell is building both cell mediated and humoral mediated, समझे? अब स्कीड में होता है क्या है ना, स्कीड में a particular enzyme will be absent, and that is called as adenosine deaminase, ADA, adenosine, SINE, adenosine deaminase enzyme, which is actually responsible for maturation of T lymphocyte in thymus। बात को समझिएगा, एडेनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम का फंक्शन क्या है ना, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट इन थाइमस, एंड एडेनोसाइन डीएमिनेज एडीए एंजाइम कोडेड बाय एडीए जीन, भाई एंजाइम प्रेजेंट है तो जीन भी होना चाहिए, एंड दैट एडीए जीन present on chromosome number 20, 20th chromosome of human being that contains the ADA gene, which coded for the protein which form the enzyme called as ADA enzyme. And in case of SCID patient, this ADA gene is absent. अगर ADA जीन एब्सेंट हो गया स्कीड में, तो स्कीड में क्या होगा, टी सेल मैच्योर नहीं होगा, एंड टी सेल अगर मैच्योर नहीं होगा तो हेल्पर टी सेल फॉर्म नहीं होगा, एंड अगर हेल्पर टी सेल कम फॉर्म होगा या तो होगा ही नहीं। तो आप सोचिए, बोथ CMI and HMI or humoral mediated immunity will be absent। समझ में आ गया? So that is why it is combined, severe combined combination of CMI and HMI। तो ये स्कीड का जो पेशेंट है, completely they are sensitive to different microorganisms or agent, क्योंकि इनके बॉडी में इम्यून सिस्टम पूरा जीरो है, जीरो इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी जीरो है तो उसको भी बहुत सारा डिजीज पकड़ेगा कि नहीं, and these patients are mostly not being that is responsible to what not live for a long time period, किसी ना किसी डिजीज से इनका डेथ हो जाता है, समझे कि नहीं? तो हम लोग इसको ट्रीट कैसे करेंगे ना, बाय मींस ऑफ जीन थेरेपी। तो ट्रीटमेंट 4 टाइप्स का ट्रीटमेंट है। Remember, how many different types of treatment for the SCID is there? 4 types.
Number 1. Bone marrow transplantation. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, रिमेम्बर अगर हम लोग बोन मैरो किसी के केसेस में ट्रांसप्लांट किए, मतलब डिफेक्टिव बोन मैरो को हटा के फंक्शनल और दैट इज न्यू बोन मैरो और फंक्शनल बोन मैरो अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, देन दैट पेशेंट नाउ एबल टू प्रोड्यूस द दैट इज फंक्शनल टी लिम्फोसाइट। क्योंकि इसके बॉडी में डिफेक्टिव बोन मैरो था तो डिफेक्टिव टाइप ऑफ लिम्फोसाइट फॉर्म हो रहा था, ठीक से फॉर्म नहीं हो रहा था एंटीबॉडी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग उसको असिस्ट कर सकते हैं टू फॉर्म द एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द बॉडी। इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर इट इज नॉट परमानेंट। ये क्या है? ये टेम्पररी है, दैट टू बी पार्शियल है। भाई सिंपल है, परमानेंट ट्रीटमेंट एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट तभी होगा जब आपके बॉडी में ये जीन प्रेजेंट हो। रहेगी नहीं, हम लोग तो जीन ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, सो दैट द बोन मैरो विल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी एंड टू क्योर द पेशेंट somehow for some extent. So it is not the permanent treatment. क्वेश्चन पूछेगा which of the following is the permanent treatment? तो बोलते हैं, ये समझ में आ रहा है? So ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन it is partial and temporary. ये है डायरेक्ट क्वेश्चन सर। नंबर 2, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ERT। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होगा? द पेशेंट will be injected with ADA enzyme in regular basis। प्रॉब्लम क्या है ना आपके बॉडी में? ADA एंजाइम एब्सेंट है, राइट? अगर हम लोग इंजेक्शन देंगे बार बार उसको रेगुलर इंटरवल में, तो आपके बॉडी में वो एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, तो आपका जो टी सेल मैच्योरेशन वो भी कंटिन्यू करेगा। But it should be taken by the patient in the regular basis, otherwise the enzyme cannot be enzyme cannot be survive for the long time period, lifetime period। एंजाइम बार बार सिंथेसिस होता है तभी फंक्शन चलता है, तो आपको भी बार बार एक्सटर्नल सोर्स से एंजाइम सप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज द पेशेंट विल अनेबल टू क्योर। तो ये भी टेम्पररी है कि नहीं? एंड पार्शियल। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन रहता है, विच इज पार्शियल, टेम्पररी, विच इज परमानेंट एंड कंप्लीट। नंबर 3, functional cDNA of ADA gene so functional cDNA of ADA gene introduced into lymphocyte। इसके बारे में भी मैं बता देता हूं, देखिए सी क्लोन्ड भी बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री भी बोलते हैं और कॉपी भी बोलते हैं। सी we have what now? We have a supposed to be ADA gene, ठीक है? हम क्या करेंगे ना, एक ADA जीन इंट्रोड्यूस, एक ADA जीन को कलेक्ट करेंगे।
this ADA gene. Now we have to collect the blood from patient's body. उस ब्लड से क्या रिमूव करेंगे हम लोग? लिम्फोसाइट. Lymphocyte is the WBC which has the highest lifespan. इसीलिए हम लोग लिम्फोसाइट चूज किए हैं. नहीं तो मोनोसाइट भी चूज कर सकते थे, न्यूट्रोफिल भी चूज कर सकते हैं, एनी WBC चूज कर सकते थे with nucleus. We are not choosing the RBC or platelet. हम लोग को बस ऐसा ब्लड सेल चाहिए जिसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा हो, जिसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट. क्योंकि हम लोग को ये जीन को इंट्रोड्यूस करना है, तो जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें? जिसमें जीन होगा, न्यूक्लियस होगा, क्रोमोसोम होगा. So we need WBC and which WBC ना? With highest lifespan. ठीक है. तो लिम्फोसाइट आप लिख सकते हैं कि भाई with highest lifespan WBC. अब इस लिम्फोसाइट को हम लोग क्या करेंगे ना? बाहर निकालेंगे. निकाल के इस लिम्फोसाइट के अंदर इस एडीए जीन को इंट्रोड्यूस कर दूंगे बाय रेट्रोवायरस. याद आया? एज वेक्टर. तो हम लोग पढ़े हैं कि रेट्रोवायरस विल बी एक्ट एज ए वेक्टर फॉर द सुइटेबल फॉर विच सेल? ना एनिमल सेल्स. तो हमने यहाँ पे एडीए जीन को लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. नाउ दिस लिम्फोसाइट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफॉर्म. Now this is called as transformed lymphocyte host, right? अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना? कल्चर करेंगे इन विट्रो. इन विट्रो कल्चर करेंगे to make it into large number. जितना हो सके हम इस ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट लिम्फोसाइट विथ एडीए जीन, उसको जितना हो सके हम ज्यादा लार्ज नंबर में उसको कन्वर्ट करेंगे, जितना हो सके. नाउ दिस इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू into patient again. तो हमने पेशेंट के बॉडी में फिर से इसको रिटर्न कर दिया. नाउ द पेशेंट कंटेन्स द लिम्फोसाइट विथ एडीए जीन. है कि नहीं? तो पेशेंट क्या करेगा? एडीए एंजाइम सीक्रेट होगा कि नहीं? बट पॉइंट इज कि लिम्फोसाइट not immortal. Immortal है कि immortal है? So it is not immortal. डेथ तो होगा ही. अगर डेथ हो गया तो उसके साथ जो एडीए जीन हमने इंट्रोड्यूस किया था उसका भी लॉस हो जाएगा. सो ये भी टेम्पररी हुआ कि नहीं? एंड पार्शियल. यही सब क्वेश्चन है. एंड द लास्ट नंबर 4. Last number 4. Introduction of cDNA of ADA gene into cells of early embryo using retrovirus. And ये retrovirus मैंने आपको बोला था, it is not a armed retrovirus although it is disarmed, ताकि ये डैमेज नहीं करे, कैंसर ना करे. तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया. So introduction of what?
of anti-aging into early embryo. मतलब हमको पहले से पता होना चाहिए कि जो एम्ब्रियो आने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या. इसीलिए प्रेगनेंसी के फर्स्ट 1 और 2 मंथ के अंदर कुछ टेस्ट किया जाता है ताकि उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं कंफर्म करने के लिए. अगर आपने जेनेटिक डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ, कंफर्म्ड हो गया कि जेनेटिक डिफेक्ट इज देयर, सपोज टू बी इट इज अ स्कीड प्रॉब्लम, तो हम क्या कर सकते हैं ना, रिट्रोवायरस के थ्रू ये फंक्शनल सी डीएनए का एडीए जीन का एक कॉपी को हम सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे. तो अर्ली एम्ब्रियो है, सेल्स के अंदर एडीए जीन अगर इंट्रोड्यूस हो गया, then that cell will form the new cells which also contains ADA. ये ट्रीटमेंट परमानेंट है कि नहीं? अगर ये लेट एम्ब्रियो होता तो पॉसिबल नहीं होता. ओनली इट इज पॉसिबल इन द अर्ली एम्ब्रियो. तो अर्ली एम्ब्रियो में करेंगे तभी पॉसिबल होगा. दैट इज व्हाई इट इज परमानेंट एंड कंप्लीट. Questions we get from this part: permanent, temporary, etc. etc. ठीक है. क्वेश्चन में कभी कभी आता है ये फर्स्ट कब किया गया था. द फर्स्ट, देखिए सब लोग, क्लिनिकल जीन थेरेपी occurs in कब हुआ था. एनसीईआरटी में इसका पूरा लिखा हुआ कि कब हुआ था. 1990. हाँ. In a 4-year-old girl. First clinical gene therapy in 1990 in a 4-year-old girl for ADA deficiency. एनसीईआरटी का है इसीलिए क्वेश्चंस आता है. एंड ईयर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपके बायो में जितने भी ईयर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस है उसको सेपरेट कर लीजिए एक नोट में. हर चैप्टर में आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी, हर चैप्टर में जो ईयर के रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस होगा कि ये इन्वेंशन हुआ था, इस ईयर में ये हुआ था, ये डिस्कवरी हुआ था, उसका एक लिस्ट बना लीजिए. क्वेश्चंस आता है वहां से. देखिएगा ऐसे बहुत सारा ईयर मिलेगा जो कॉमन होगा और वहां से क्वेश्चंस पूछता है कि 1990s में ये हुआ था तो और क्या हुआ था. समझे? इसलिए उसको बना लीजिए. कंप्लीट. नेक्स्ट एक वर्ड लिखिए, मॉलिक्यूलर फार्मिंग. हम लोग नॉर्मली एक वर्ड सुने, फार्म हाउस. सुने ना, कि फार्म हाउस में जाके लोग ठहरते हैं, अपना रिलैक्स करते हैं, थोड़ा अपना जो वेकेशन से वहां पे जाके थोड़ा सा स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं. भाई फार्म हाउस में होता है क्या है ना, बहुत सारा छोटा छोटा गार्डन्स वगैरह होता है, कल्टीवेशन होता है, अच्छा खासा बड़ा ऑर्गेनिक टाइप का फार्मिंग होता है, छोटा सा रूम होता है जहाँ पे जाके हम लोग आराम करते हैं. फार्मिंग. यहाँ पे किस चीज का फार्मिंग हो रहा है? मॉलिक्यूल का फार्मिंग हो रहा है. मॉलिक्यूल क्या है ना, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ऑल आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल. लेकिन हम लोग यहाँ पे डीएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं, आरएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन विच प्रोडक्ट वी नीड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर ना, प्रोटीन. तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग का मतलब समझे? राइट. प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन
from live animal and plant. जैसे हम लोग एग्जाम्पल दिए थे हिरुडीन, याद है ना? हाँ, ब्रासिकानेपस याद होगा. Full stop. The transgenic organism act as the host for protein synthesis. The transgenic organism act as the host for protein synthesis. Now लिखिए डायग्नोसिस, एक वर्ड लिखिए, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस. इसका फटाफट लिखिए, हम लोग मेन पॉइंट पे जाएंगे. डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब होता है टू डिटरमिन ए पर्टिकुलर डिजीज, टू कंफर्म ए पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड एज व्हाट? डायग्नोसिस. Diagnosis methods are there. There are so many diagnosis methods there to confirm the particular disease. It's called as diagnosis. After confirmation of particular disease, we has different type of treatment against that. And doctor, जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते तो आपको पूछते हैं कि आपको हुआ क्या है. आप अपना सिम्टम्स बताते हैं या रूट डिजीज का नाम बताते हैं? आप अपना सिम्टम्स बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को वो मॉनिटर करते हैं. मॉनिटर करने के बाद एक कंफर्म करते हैं कि हो सकता है कि ये XYZ डिजीज हो. उसको 100% श्योर होने के लिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट करवाते हैं आपसे, कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, XYZ टेस्ट. टेस्ट होता है दो टाइप का. टेस्ट को हम लोग डायग्नोसिस बोलते हैं. डायग्नोस्टिक टेस्ट दो टाइप का होता है. दैट इज व्हाट? कन्वेंशनल डायग्नोसिस एंड मॉडर्न डायग्नोसिस. हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में. जैसे हम लोग ट्रीटमेंट, जैसे हम लोग का डायग्नोसिस कंफर्म्ड हो गया, हम रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर श्योर हो जाते हैं कि दिस पर्टिकुलर डिजीज हैज बीन ऑकर्ड. तब वो अपना दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से इस डिजीज को हम लोग ट्रीट करेंगे. व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द प्रोपोर्शन, दैट रेशियो टू क्योर दिस पर्टिकुलर डिजीज. कितना चांस है, क्या डिजीज किस ट्रीटमेंट के थ्रू, किस मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोग्नोसिस. That is called as what? Prognosis. So first write the diagnosis. Act or process of determining the nature and cause of disease. Act or process of determining the nature and cause of disease through evaluation of patient history. Through evaluation of patient history, examination, and review of laboratory data. ठीक है, समझ में आ गया? नाउ राइट प्रोग्नोसिस. Prognosis, medical term for doctor's prediction, of how patient will progress and whether there is a chance of recovery, समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे
डायग्नोसिस के बारे में। देखिए डायग्नोसिस दो टाइप का है। वन इज ट्रेडिशनल, सेकेंड इज मॉडर्न। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न में थोड़ा आप दिमाग लगा लीजिए, बहुत इजी है। ट्रेडिशनल में हम लोग पहले सिम्टम अपीयर होने के बाद टेस्ट करते हैं, राइट? सिम्टम अपीयर होने के बाद टेस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है ना, आपके बॉडी में डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस का नंबर बहुत हाई है, ज्यादा है, इसीलिए सिम्टम है। सिम्टम है तो कन्वेंशनल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजीज डायग्नोसिस। आपको सिम्टम नहीं है, no disease symptom means the number of pathogen either absent or if present it is very less in number, low in number। मतलब अर्ली डायग्नोसिस की लेट डायग्नोसिस, विच इज लेट डायग्नोसिस? ट्रेडिशनल में लेट डायग्नोसिस मतलब विद सिम्टम की विदाउट सिम्टम, लेकिन मॉडर्न डायग्नोसिस में क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस without symptom to confirm the particular disease causing agent whether it is present or absent। समझे कि नहीं? सो ट्रेडिशनल with symptoms silent, high number of microbes or pathogens, is late diagnosis। means early diagnosis possible or not possible? early diagnosis possible or not possible? यहाँ पे लेट डायग्नोसिस है। तो लेट डायग्नोसिस तभी होगा जब नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा। ब्लड सैंपल टेस्ट कराते हैं तो ब्लड में नहीं होगा माइक्रोब्स और कम होगा तो कैसे टेस्ट कंफर्म करेंगे? सो अर्ली डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल। समझे कि नहीं? अब एग्जांपल दे देते हैं। अच्छा ये क्या है? इट इज कन्वेंशनल मेथड। ट्रेडिशनल का मतलब वही है। एग्जांपल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है, कोई भी बॉडी फ्लूइड टेस्ट एटसेट्रा, जो नॉर्मली हम लोग टेस्ट कराते हैं लैब में जाके, जैसे ग्लूकोज टेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न डायग्नोसिस में देखिए बहुत ही क्लियर कट अपोजिट कैरेक्टर है। नो सिम्टम, तो यहाँ पे सिम्टम नहीं है, फिर भी आप लोग को टेस्ट करना है कंफर्मेशन के लिए। जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट होता है कोविड को डिटेक्ट करने के लिए, वेदर द कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव, लेकिन सिम्टम नहीं है, लेकिन हमको जाना है, फ्लाइट पकड़ना है, तो मुझे टेस्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिम्टम ना होते हुए भी किसी का पॉजिटिव निकलता है। ये क्या है? अर्ली डायग्नोसिस हुआ कि लेट डायग्नोसिस? अर्ली डायग्नोसिस। इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द मॉडर्न। मतलब यहाँ पे लो कॉपी और लो नंबर ऑफ माइक्रोब्स और हाई नंबर, लो नंबर, आइदर लेस नंबर ऑफ माइक्रोब्स, लेस है इसीलिए एब्सेंट है, सिम्टम्स एब्सेंट है। अर्ली डायग्नोसिस,
It is, we can say, एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं पीसीआर, याद है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता है क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए और माइक्रोब्स को हम लोग लार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी में सिम्टम्स नहीं है, लेस नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज प्रेजेंट, दैट मींस वी कैन एम्प्लीफाई इट टू मेक इट टू लार्ज so as to confirm whether the disease is present or absent. तो पीसीआर हो गया, एलाइजा हो गया, आरटीपीसीआर भी होती इसी के अंदर आता है। और क्या दे सकते हैं ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और क्या दे सकते हैं ना, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। All these are actually the modern method. We are coming to, यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल टेस्ट लिखा, एड्स हो गया, कोविड टेस्ट हो गया। Now we are coming to the next point, that is ELISA. स्टार्ट करें। Enzyme linked immunoservant assay. Enzyme linked immunoservant assay, यहां से सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस रहता है। एक तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, इट इज अर्ली डायग्नोसिस व्हिच इज मॉडर्न मेथड टू कंफर्म द डिजीज विदाउट एनी सिम्टम। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका बेसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या है। जैसे पीसीआर में मैकेनिज्म क्या ना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, डीएनए को एम्प्लीफाई कर देते हैं। अ सिंपल replication in a high rate is called as what na, PCR. What is the mechanism behind the ELISA? ELISA क्या है? That is simply the antigen antibody interaction. जैसे ELISA क्या था ना, डीएनए बेस्ड टेक्निक था। ELISA क्या है ना, प्रोटीन बेस्ड टेक्निक। तो ये याद रखना कंपलसरी है आपके लिए। पीसीआर डीएनए बेस्ड, yes or no? ELISA प्रोटीन बेस्ड, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन बेस्ड, आरटीपीसीआर क्या है ना, ये आरएनए डीएनए बेस्ड। याद है, पहले आरएनए है वो डीएनए में चेंज होगा, आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरडीटी क्या है ना, दैट इज आल्सो द डीएनए बेस्ड। समझेगी नहीं? तो यहां से और क्या क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। शायद मैंने लिखा था ब्लॉटिंग का 3 डिफरेंट टाइप्स, लिखा था कि नहीं? ब्लॉटिंग मींस मूविंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन टू अनदर, उसी को बोलते हैं ब्लॉटिंग। ब्लॉट करके उसको एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग होता है 3 अलग अलग टाइप, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग and western blotting. Southern blotting is given the name as per the scientist E.M. Southern. साउदर्न के नाम से हुआ है साउदर्न ब्लॉटिंग, जो डिस्कवर किए थे डीएनए ट्रांसफर। डीएनए को कैसे एक जगह से शिफ्ट किया के दूसरे जगह पे शिफ्ट किया,
So blotting of DNA is called as Southern blotting as per the name of the scientist, right? तो Southern blotting कौन सा टेक्निक हो गया, डीएनए बेस्ड या प्रोटीन बेस्ड? हाँ, डीएनए का रिवर्स होता है आरएनए एंड साउथ का रिवर्स होता है नॉर्थ। इसीलिए नॉर्दर्न ब्लटिंग क्या हो गया, आरएनए बेस्ड मेथड हो गया, एंड इसका रिवर्स हो गया वेस्टर्न प्रोटीन बेस्ड। तो आप सोचेंगे भाई साउदर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न सब नाम कैसे हुआ, समझ में आया? साउदर्न इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बाकी सब रिलेटेड नहीं है साइंटिस्ट के साथ, ये ऐसे जानबूझ के दिया गया था कि याद रखने में इजी हो। डीएनए बेस्ड, आरएनए बेस्ड, वेस्टर्न दैट इज प्रोटीन बेस्ड। और एक है उसका नाम है RAPD, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए मतलब यहाँ पे भी एम्प्लीफिकेशन हुआ कि नहीं? किसका एम्प्लीफाई हो रहा है भाई? किसका? डीएनए का। तो पीसीआर और आरएपीडी में सिमिलरिटी है कि नहीं? ये पूछेगा which of the following is the method for the amplification of DNA? एक तो पीसीआर, दूसरा क्या है? आरएपीडी। आरएपीडी भी एम्प्लीफाइड डीएनए दिख रहा है आपको? तो आपको क्वेश्चन मिल गया इनमें से which is protein based method, which is DNA based method, which is RNA based method? शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। Now we are coming to ELISA. So question say it is mechanism is antigen antibody interaction, that is why it is protein based method, right? समझ में आ गया? एक्चुअली मैं खाली आइडिया दे देता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। We have three different type of assay. Number one is direct assay. डायरेक्ट एसे मतलब ये टाइप्स ऑफ एलाइजा है, ठीक है? पहले आता है डायरेक्ट एसे। डायरेक्ट एसे यूज्ड टू डिटेक्ट अननोन एंटीजन। तो एलाइजा में आप एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट एसे में हम लोग क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? अननोन एंटीजन। मैं एक ही स्टेप बताऊंगा, बाकी स्टेप को स्किप करेंगे। दिस इज ए एलाइजा प्लेट। ये एलाइजा का प्लेट है, राइट? इसको बोलते हैं माइक्रो टीटर प्लेट। एंड इसमें बहुत सारा ऐसे वेल होता है, वेल वेल क्या होता है? ऐसे बहुत सारा वेल होते हैं। वैसे वेल प्रेजेंट है, हाउ मच ना 96 नंबर ऑफ वेल प्रेजेंट इन द माइक्रोटीटर प्लेट और एलाइजा, राइट? कितना? 96 वेल प्रेजेंट इन द माइक्रोटीटर प्लेट ऑफ एलाइजा। अब हम डायरेक्ट ऐसे में आते हैं। ये एक वेल है सपोज टू बी, राइट? वन ऑफ द वेल वी हैव इन द डायरेक्ट ऐसे। पहले हम क्या करेंगे, हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करा? अननोन एंटीजन का अननोन एंटीबॉडी। अननोन एंटीजन प्रेजेंट इन द सैंपल, राइट? हमने ब्लड सैंपल लिया है, यूरिन सैंपल लिया है, XYZ बॉडी फ्लूइड सैंपल लिया है,
हमको आइडेंटिफाई करना है कि उस सैंपल में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, राइट। स्टेप वन में हम यूज करेंगे नोन एंटीबॉडी। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा नहीं समझाएंगे। पहले हम स्टेप वन में क्या करेंगे ना, नोन एंटीबॉडी ऐड करेंगे इन द डिफरेंट वेल। आपके पास 96 वेल है, आप अंदाजा लगा के जितना भी हो सके आप वेल यूज कर सकते हैं, एंड हर एक वेल में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी ऐड करना है, नॉट द सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडी। व्हाट? Different type of antibody is to be used in the different well. Known antibody क्या unknown? Known antibody. ऐड कर दिए, ऐड हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ऐड हो गया, ऐड हो गया। एंटीबॉडी ऐड करने के बाद हम इसको वेल को साफ कर देंगे, बहुत ही डिस्टिल्ड वाटर में उसको बहुत ही हल्के से रींच करेंगे। रींच करने से क्या होगा ना, जो एक्सेस एंटीबॉडी है वो वॉश हो जाएगा। समझे कि नहीं? Because here the antibody has been adhere with the well wall, wall के साथ ये adhere हो गया, एक्सेस को हमने रींच करके रिमूव कर दिया। ये सारे के सारे वेल के साथ करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे ना, स्टेप टू वी विल ऐड सैंपल। सैंपल में क्या है, अननोन एंटीबॉडी है कि एंटीजन है? एंटीजन। एंड दिस अननोन एंटीजन सेम टाइप है कि डिफरेंट टाइप है? मतलब सेम टाइप ऑफ सैंपल इज टू बी यूज्ड इन द डिफरेंट वेल। जितना वेल हमने लिया है सारे के सारे वेल में हम वही सैंपल को, सैंपल ऑफ सोल्यूशन को और सैंपल को ऐड कर देंगे इक्वली। भाई किसी एक वेल में ये एंटीजन के साथ एंटीबॉडी तो मैच करेगा या नहीं करेगा? अगर कर गया तो हो गया सक्सेस हमारा। लेकिन क्या, कहां पे किया कहां पे नहीं किया पता कैसे चलेगा? तो हम सेकेंड स्टेप के बाद फिर से वाटर में रींच करेंगे। रींच करने से क्या होगा ना, जहां पे मैच किया होगा सिर्फ वहीं पे इस एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडी बाइंड किया होगा एंड वो प्रेजेंट भी होगा, राइट। रींच करने के बाद जहां पे मिसमैच होगा वहां पे ये एंटीजन अभी अब्सेंट होगा। मैच किया होगा तभी तो वो बाइंड किया होगा, बाइंड किया होगा तो रीच करने के बाद भी ये एंटीजन प्रेजेंट होगा उस वेल में। हमको तो नहीं पता कि किस वेल में मैच किया है, लेकिन हम लोग पहले से ही स्टार्टिंग से ही जो नोन एंटीबॉडी दिए थे उसको नोट करके रखें कि भाई एक्स और नंबर 1 वेल में ये एंटीबॉडी दिए है, नंबर 2 वेल में ये एंटीबॉडी दिए है, नंबर 3 वेल में ये एंटीबॉडी दिए, हम लोग नोट करके रखें। ठीक है, अब एंटीजन तो हमने दे दिया, वो तो हमको नहीं पता है कि एंटीजन कहां पे मैच किया है। कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे ना, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। सो स्टेप 3, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी वी नीड टू ऐड, एंड ये भी नोन है, ये भी नोन एंटीबॉडी। सो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी वी नीड टू ऐड हियर, एंड ये हो गया आपका एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। Antibody linked with an enzyme is called as what? Enzyme linked antibody. ऐड कर दिए सारे के सारे वेल में, फिर से रिंच कर देंगे। रिंच करेंगे तो ये एंटीजन जिस वेल में प्रेजेंट होगा उसी वेल में ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी बाइंड करेगा। रिंच करने के बाद ये सब हट जाएगा जहां पे बाइंड नहीं किया होगा। ओके, नाउ दिस फोर्थ स्टेप इज we need to add what? A colorless substrate. Colorless substrate ऐड करेंगे। एंड रिमेंबर यहाँ पे जो एंजाइम हम लोग यूज करते हैं उस एंजाइम का नाम क्या है? पेरोक्सीडेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज।
So peroxidase and alkaline phosphatase, these are the two enzymes which is used in the enzyme linked antibody, right? अब ये जो कलरलेस हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये कलरलेस सबस्ट्रेट that will be changed into what? Colored. If this enzymes are present. समझेगी नहीं? तो भाई जितने भी वेल हमने यूज किया था, एक वेल में आपको कलर दिखेगा. जिस वेल में कलर दिखा मतलब उस वेल में ये एंजाइम प्रेजेंट है. किसमें प्रेजेंट है? जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है. किसमें एंटीजन प्रेजेंट है? जिसमें ये मैच किया होगा. और पहले से हमने नोट करके रखा कि भाई ये नंबर 10 है और नंबर 10 में कलर दिख रहा है, तो नंबर 10 में कौन सा नोन एंटीबॉडी मैंने दिया था. अगर एंटीबॉडी नोन मिल गया तो एंटीजन भी तो वही स्पेसिफिक है. एंटीजन एंटीबॉडी आर स्पेसिफिक. पढ़े थे स्पेसिफिसिटी. तो अननोन एंटीजन नाउ बिकम्स नोन. समझे? क्लियर है? मैं खाली आइडिया दिया, ये सब क्वेश्चंस में नहीं आता है. आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए दिमाग में कि भाई एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कैसे वो आइडेंटिफाई करता है. हमको उससे कोई मतलब नहीं. आपको याद रखना है नेम ऑफ द एंजाइम, peroxidase and alkaline phosphatase. Number 3, what is the name of this plate? Microtiter plate, 9612, direct assay for the detection of what? Unknown antigen. वैसे ही नंबर 2 है indirect assay which is used for the detection of unknown antibody. अननोन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए क्या है ना, इनडायरेक्ट एसे. वैसे ही नंबर 3 कैप्चर एसे सैंडविच. सैंडविच में क्या होता है? दोनों साइड में ब्रेड होता है. वैसे यहाँ पे दोनों साइड में नोन एंटीबॉडी होगा, इसीलिए उसको सैंडविच बोलते हैं. तो कैप्चर एसे सैंडविच इज आल्सो मेंट फॉर दी टू डिटेक्ट अननोन एंटीजन. मतलब अननोन एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट भी है, कैप्चर एसे भी है. लेकिन डायरेक्ट में सिर्फ वन नोन एंटीबॉडी दिया जाता है एंड कैप्चर एसे में दोनों साइड में देंगे. तो दोनों साइड में देने से फायदा क्या है ना, उसका जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा. जो सिग्नल है, जो कलर का जो सिग्नल है वो ज्यादा और परफेक्ट सिग्नल होगा. रहेगी नहीं? हाँ. समझ में आया? लिखना हो गया सबका? जल्दी. वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑटो रेडियोग्राफी. कंप्लीट हो गया? चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. चले, ऑटो रेडियोग्राफी. Used to detect and localization of
रेडियोएक्टिव डीएनए और आरएनए सैंपल so it is mainly useful for detection of mutate gene. फर्स्ट पॉइंट मैंने जो लिखा है इसका मैकेनिज्म कि ऑटो रेडियोग्राफी का मैकेनिज्म क्या है ना। ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग रेडियोएक्टिव डीएनए और आरएनए सैंपल को डिटेक्ट करते हैं, लोकलाइज करते हैं. So by means of detection of the RNA DNA sample, that is radioactive RNA DNA sample, we are using this for the detection of what na mutated gene. Mutated gene or that is DNA और RNA. म्यूटेशन क्या है, लार्ज स्केल में होता है कि स्मॉल स्केल में होता है? स्मॉल स्केल. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्मॉल स्केल मतलब बहुत ही लेस नंबर ऑफ डीएनए आरएनए होगा. तो स्मॉल साइज डीएनए आरएनए को हम लोग को डिटेक्ट करना है. For that, we have to go for the some of the word like your probe. Probe क्या है? The probe का definition है single stranded DNA or single stranded RNA which are radioactively labeled. So radioactively labeled single stranded DNA or single stranded RNA is called as what? Probe. And ये single stranded DNA, single stranded RNA are known. ये unknown नहीं है. Known DNA, RNA, single stranded RNA radioactively labeled is called as probe. ध्यान से समझिए, बहुत easy है. We have a chromosomal DNA. Supposed to be this is chromosomal DNA. इस chromosomal DNA में supposed to be एक mutation हुआ है, right? उस म्यूटेशन कहां पे हुआ है, उस म्यूटेशन म्यूटेटेड जीन को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है. तो वी हैव टू गो फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रेस्ट्रिक्शन करेंगे तो डीएनए जो है वो फर्स्ट क्या हो जाएगा ना, डिफरेंट फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट. मान लेते हैं सपोज टू बी ये जो जीन है वो म्यूटेटेड है. हम इस म्यूटेटेड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नाउ वी विल हैव द एल्केली. एल्केली करने से क्या होगा ना, ये जो डीएस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट था दैट विल बी चेंज इनटू व्हाट? सिंगल स्ट्रैंडेड. हाइब्रिड ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा. नाउ वी विल ऐड व्हाट, सपोज टू बी मान लेते हैं ये आपका म्यूटेटेड डीएनए, राइट? जो म्यूटेटेड होते हैं वो अननोन होते हैं कि नोन होते हैं? यही कंसेप्ट है. म्यूटेशन जो हुआ है वो तो डीएनए क्या हुआ ना, डिफेक्टिव है. तो अननोन डीएनए, अननोन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस की नोन सीक्वेंस अननोन. ठीक है, लेकिन बाकी सब क्या है? नोन. अब हम इस पे ऐड करेंगे क्या ना, प्रोब. एंड प्रोब क्या है? अगर हम डीएनए लिए हैं तो डीएनए भी प्रोब होना चाहिए. अगर हम आरएनए क्रोमोसोमल आरएनए लेंगे तो यहाँ पे प्रोब होना चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. तो एज वी हैव टेकन द डीएनए सो वी नीड टू यूज व्हाट? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. नोन है कि अननोन है? तो ये नोन वाला जाके किसके साथ बाइंड करेगा? कंप्लीमेंट्री साइट के साथ बाइंड करेगा. लेकिन अननोन का कंप्लीमेंट्री पेयर क्या प्रोब के पास होगा? समझे? तो जितने भी कंप्लीमेंट्री मिलेगा उसके साथ वो बाइंड कर जाएगा, लेकिन जो कंप्लीमेंट्री नहीं होगा उसके साथ वो बाइंड करेगा क्या? तो बाकी सब क्या बन गया? बाकी सब तो हाइब्रिड बन गया. हाइब्रिड ऑफ व्हाट?
नॉर्मल डीएनए प्लस रेडियोएक्टिव डीएनए। समझे कि नहीं समझे? नॉर्मल डीएनए प्लस रेडियोएक्टिव डीएनए, रेडियोएक्टिव मतलब वही प्रोब को ही रेडियोएक्टिव बोल रहे हैं। जो हाइब्रिड बना उसमें नॉर्मल प्लस रेडियोएक्टिव बोथ है, लेकिन जो अनहाइब्रिड रहा उसमें तो खाली डीएनए है, रेडियोएक्टिव नहीं है। तो विच इज हेवी, रेडियोएक्टिव जिसमें होगा वही तो हेवी होगा। Now it is detected through what? ना रेडियोग्राफी। आप लोग जानते हैं यूवी रेडिएशन उसमें ऐड करेंगे। to identify the radioactive हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, फिर ऑटो रेडियोग्राफी जो प्रोसेस हम लोग को डिस्कशन ज्यादा नहीं करना है यहाँ पे। फिर ऑटो रेडियोग्राफी फॉलो करेंगे, हाइब्रिड डीएनए का कहाँ पे है लोकलाइज करेंगे। एंड जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो तो लाइट डीएनए होगा, तो उसका मूवमेंट फास्टर होगा कि नहीं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये मैं बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर रहा हूँ। ऑटो रेडियोग्राफी के बाद उसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से जो हाइब्रिड है वो स्लो मूव करेगा क्योंकि वो हैवी है, लेकिन जो लाइट है वो फास्ट मूव करेगा, तो वो सेपरेट हो जाएगा एंड हम लोग को पता चल जाएगा आराम से। क्लियर है? क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहां से आता है कि प्रूव का डेफिनेशन क्या है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, मैंने आप लोग शायद पढ़े हो बॉटनी में कि भाई हम लोग जब रेडियोएक्टिव करते हैं तो फॉस्फेट को करते हैं, पढ़े हो ना हर्षिचेज एक्सपेरिमेंट शायद, मुझे जहां तक याद है। तो फिर फॉस्फेट को हम लोग क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, फॉस्फेट को हम लोग एक्चुअली रेडियोएक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोब में जो हम लोग एक्चुअली फॉस्फेट रेडियोएक्टिव कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? फॉस्फेट। फॉस्फेट को हम लोग रेडियोएक्टिव बनाते हैं, नहीं तो डीएनए में किसको रेडियोएक्टिव बनाएंगे? फॉस्फेट को ही रेडियोएक्टिव बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है।